Hello friends, welcome to our online classes. Today we are doing class 10 math chapter number 5 arithmetic progression exercise 5.2. In our previous section we have already done 5.1, now we are doing 5.2. So this is the first question. We have to find n term, means 10 term, in second question 18 term, and AP is already given. So in every AP there is two terms. A means first term and D means difference. This and D denotes difference. 7 minus 2 is equal to 5. So we have got A, we got 5. After that we will find 10 terms. So the formula is AN is equal to A plus N minus 1 into D. So N denotes 10, A10 is equal to A 2 plus N minus 1. में N over 10 minus 1, D कितना है 5. So 2 plus 10 minus 1 9 into 5 A10 equal to 2 plus 9 5 ja 45 is equal to 45 plus 2 47. This is our 10 terms. So A10 is equal to 47. In second part of first question, root 2, root 3, root 2, 5 root 2 is already given. We have to find out 18th term. Now see, A is root 2. Now we have to find D. D will be 3 root 2 minus 2 root 2. So what will become? D come 3 minus root 2 will be common. 3 minus 1. So D is equal to 3 minus 1 2 root 2. So this is our D difference, and we have to find out 18th term. So our N is equal to 18th. So A N with 18 is equal to A. A कितना हमारा root 2 plus N minus 1 N कितना है 18 minus 1 D 2 root 2. So A18 is equal to root 2 plus 18 minus 1 17 2 root 2. So root 2 plus 17 to the 34 root 2. So in next step we have to common root 2. 1 plus 34 is equal to 34 plus 1 35 root 2. So this is our 18th term. This is our answer. In next question we will find whether is it AP or not. Now see second question. Question number second. Solve which term of AP is 21, 18, 15. AP is already given. 21, 18, 15 and so on, and is 81. Which term of AP is 21, 18, 15 is minus 81. This is the first part. Now we know the formula AN is equal to A plus N minus 1 into D. So AN कितना है हमारा 81. हमें यहाँ n फाइंड आउट करना है. A कितना है हमारा 21 प्लस n माइनस 1 हमें नहीं पता है. D होता है डिफरेंस. D इज इक्वल टू 18 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 3. सो D कितना है हमारा माइनस 3 माइनस 81 21 प्लस माइनस 3 इंटू n माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3. So minus 81 is equal to 21 plus 3 24 plus minus 3n. देखिए ये यहाँ आएगा तो माइनस 1 81 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 3n. माइनस और माइनस ऐड हो जाएंगे. देखो 1 1 और 4 5 8 और 2 10. So माइनस 3n माइनस 3n. So माइनस से माइनस कैंसिल.
सो n इज इक्वल टू 105। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई तो यहाँ ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आएगा 35। सो n इज इक्वल टू 35। सो -81 इज द 35th term. So this is an AP. Yes, this is an AP series. So now we are taking third question of second number. We are leaving second because it is the same. Now third is 301 is any term of 301, any term of 5, 11, 17, 23. Now see, an कितना हमारा 3, फॉर्मूला लिख लेते पहले। an is equal to a plus n minus 1 into d। an कितना गिवन है 301, a कितना है हमारा 5, n minus 1 कितना है हमें नहीं पता, d कितना है 11 minus 5 means 6। So 301 is equal to 5 plus n minus 1 means 6। 6 को हम n से मल्टीप्लाई किया 6n प्लस माइनस 6, 6 1 जा 6। 301 is equal to 5 minus 6 minus 1 plus 6n, माइनस 1 इधर जाके आएगा प्लस 301 प्लस 1 equal to 6n, 302 upon equal to 6n, n is equal to 302 by 6। So it is nearly 6 5 the 30, 2 remains 0 point something, 2 0 6 3 the 20 is 50.3। but it is very clear that any term of any AP it will be not will be in point, it's come 50.3 and so on। मीन्स हमारी जो टर्म होती है वो हमेशा होल नंबर में आती है 1 2 3 4, कभी भी पॉइंट्स नंबर में नहीं आती। सो दिस इज एन एपी, नो दिस इज नॉट एन एपी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो सेम। नाउ वी आर टेकिंग थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6 and 17 टर्म्स है। 6 टर्म कौन सी है और 17 टर्म्स हमें पूछ दी गई है। 6 टर्म है हमारी 19 और 17 टर्म है हमारे 41। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 40 टर्म, हमें 40 टर्म फाइंड आउट करनी है। देखिए 6 टर्म दी हुई है मींस a6 is equal to a plus n minus 1 equal to d। अब n कितना है हमारे पास 6, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे ले लेते हैं a plus 6 minus 1 means d, क्योंकि हमें n गिवन है 6। so a6 is equal to a plus 6 minus 1 d मतलब 5d। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इससे 17th टर्म दी गई हमें 41। सो a41 is equal to a plus n minus 1 into d। a41 is equal to a plus n minus 1 means 41 minus 1 is equal to d। so a41 is equal to a plus 41 minus 1 40d। देखिए अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं से ही हमें सॉल्व करके हमारे नेक्स्ट स्टेप हम 40 टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। a41 इज इक्वल टू a प्लस 4d और a6 कितना है हमारा a प्लस 5d, इट इज 40.5। नाउ माइनस इट, a से a कैंसिल। अब देखिए a41 की वैल्यू कितनी है हमारी, सॉरी a14 नहीं है, ये 17 है टर्म हमारी। देखिए a17 यहाँ भी हमारी गलत हो गई है, 17 माइनस 1 तो ये हो गया हमारा 16। तो देखिए
A17 थी हमारी यहाँ पर, A17 की वैल्यू कितनी हमारी 41, A प्लस 5D कितना है हमारा 16, ये रहा A6 की वैल्यू कितनी हमारी 19, माइनस किया दोनों में से तो यहाँ पर आया 32 और यहाँ A से A हमने कैंसिल कर दिया, 16 माइनस 5 के 11D 22, so D equal to 22 11 by 11, so D हमारा कितना है, D is equal to 2। हमने यहाँ कुछ मिस्टेक होगी तो हमने इसको रेक्टिफाई किया, तो D हमारा कितना आया 2। अब इन दोनों में से हम किसी भी इक्वेशन में रखकर हम इसकी A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जैसे हमने इसमें इक्वेशन नंबर 2 में रखा, A17 कितना है हमारा, A17 की वैल्यू है हमारी 41 is equal to A plus 16D, A plus 16D, A plus 16D, 16 into D कितना है 2, 16 2 जा 32, A plus 32 41, A equal to 41 minus 32 मीन्स हमारा कितना है 9, A कितना है हमारा 9 और D कितना है हमारा 2। अब हमें इससे कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, हमें 40th टर्म। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। अब देखिए 40 टर्म फाइंड आउट करनी, A40 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, A40 A कितना है हमारा 9 प्लस n-1 मीन्स 40 माइनस 1 इंटू D, 9 प्लस 41 माइनस 39, D की हमारी वैल्यू आ चुकी है, D की वैल्यू कितनी हमारी 2, 9 plus 78, so A40 is equal to 9 plus 78 is equal to 87, so this is our 87 A40, so this is our answer. Now we are doing next question number 4. If third and ninth term, थर्ड टर्म कौन सी हमारी और नाइन्थ टर्म कौन सी है हमारी, देखिए थर्ड टर्म गिवन है हमें 4 और नाइन्थ टर्म कौन सी गिवन है हमें -8, और हमें कौन सी फाइंड आउट करनी है, देन विच टर्म ऑफ इट्स विल बी 0। हमें ये देखना है कि 0 कौन सी टर्म होगी हमारी। देखिए थर्ड है, सो A3 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। A थर्ड कितना है हमारा 4 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, 4 इक्वल टू A प्लस 2D। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखिए 9 टर्म कौन सी है, -8 माइनस है, सो A9 is equal to A plus n-1 into D। A9 कितना है हमारा -8, A plus n-1 into D। A कितना है हमारा नहीं हमें पता, A plus n कितना है 9 माइनस 1 into D, -8 इक्वल टू A plus 9 minus 1 into D, 8D। so this is सेकेंड इक्वेशन। हम पहले की तरह है सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे, सो -8 इज इक्वल टू A प्लस 8D। फर्स्ट वन से हमारी 4 A प्लस 2D, माइनस किया माइनस 8 और A माइनस दोनों माइनस की साइन होगी तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा -12, A से A कैंसिल, 8 में से 2 गया 6D, तो D कितना आया हमारा -12/6 इज इक्वल टू 2। तो D की वैल्यू कितनी है हमारी 2। अब इसी तरह हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम इसको किसी भी इक्वेशन में रखते हैं, लेट्स सी हमने इसको सेकंड नंबर इक्वेशन में रखा, -8 इक्वल टू A प्लस 8D, -8 A प्लस 8D, D मीन्स हमारा 2, -8 इक्वल टू A प्लस 8 टू 16, सो A इक्वल टू -8 -16,
a इक्वल टू 24। देखिए हम यहाँ एक माइनस लगाना पड़ेगा हमारा, तो d कितना है हमारा -2 तो हमारा ये नंबर कितना आएगा प्लस माइनस -16 a -16, तो 16 यहाँ पे आएगा प्लस का, तो हमारे यहाँ पे कितना आंसर आएगा प्लस का 8। तो a कितना है हमारा प्लस का 8। देखिए d आ गया, a आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जीरो कौन सी टर्म होगी इसमें से। तो मैं इस साइड के पोर्शन को डिलीट कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। जीरो, हमें ये नहीं पता कि कौन सी वैल्यू जीरो होगी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है हमारा 8, n कितना है हमारा हमें फाइंड आउट करना है, सो n माइनस 1, d कितना है हमारा -2। यहाँ वैल्यू जीरो है तो हमने यहाँ जीरो रखा। 8 प्लस -2 इंटू n -2n माइनस माइनस प्लस 2, सो 8 में 8 और 2 10 -2, सो ये -2 है तो इधर आगे प्लस 2n इक्वल टू 10, सो n इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स जो हमारी टर्म है वो फिफ्थ टर्म आएगी, मतलब फिफ्थ टर्म हमारी क्या होगी, उसकी वैल्यू 0 होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। If third term of AP is 16, थर्ड टर्म कौन सी है AP की 16, and seventh term exceeds the fifth term by 12। सेवंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है 12। कितना है 12। अब हमें इसकी AP फाइंड आउट करनी है। देखिए थर्ड टर्म है तो हम इसको क्या लिखेंगे, A3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 कितनी वैल्यू है 16, a हमें नहीं पता। अब देखिए n माइनस 1, n कितना है थर्ड 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब 16 इक्वल टू a प्लस 2d। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब देखिए इस क्वेश्चन में मेन पार्ट है ये कि सेवन टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस कितना है 12, मींस a7 माइनस a5 का डिफरेंस कितना है 12। अब a7 को हम कैसे लिखते हैं हमेशा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n कितना है यहाँ पर 7, तो मैं यहाँ पे 7 मेंशन कर रहा हूँ, माइनस a5 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ 1 n है 5 है, 5 का मतलब यहाँ पर 5, सो a प्लस 7 माइनस 1 6d माइनस a प्लस 5 माइनस 1 4d। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 12। a प्लस 6d a प्लस 4d। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस 6d माइनस a प्लस माइनस माइनस 4d इक्वल टू 12। a से a कैंसिल, 6d माइनस 4d कितना बचा इन दोनों में से 2d इज इक्वल टू 12, सो d इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 6। तो हमारा डिफरेंस कितना आया 6। अब हम इसको d को इक्वेशन नंबर 1 में रखकर हमारा a फाइंड आउट करेंगे, मतलब हमारा इनिशियल स्टेप फाइंड आउट करेंगे हम। 16a प्लस 2d, 2d d कितना है हमारा 6, a प्लस 2 इंटू 6, 16 इक्वल टू a प्लस 2 6 12, तो 16 इक्वल टू a। अब देखिए यहाँ 12 प्लस है तो इधर आके माइनस क्या होगा, मीन्स 4। a कितना आया 4। अब हमें इसकी फाइंड आउट करनी है AP। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है a, मीन्स a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d, यही हमारी AP होती है। लेट्स सी a कितना है 4। अब 4 में एक डिफरेंस ऐड करना, डिफरेंस कितना है 6, 4 प्लस 6 10, फिर a देखिए फिर कितना है a 4 प्लस 2d 6 हो जाए 12, 12 प्लस 4 16। देखिए थर्ड स्टेप है, यही हमारा थर्ड स्टेप यहाँ पर आ गया। 16 मींस 16 हमारा आंसर सही चल रहा है। a प्लस 3d
फिर आएगा 22, देन 28 एंड सो ऑन। दिस इज आवर आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट नजर आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस पर लिख के भेजिए कि कौन सा स्टेप आपको समझ नहीं आया किस क्वेश्चन का। प्लीज क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा, उसके बिना हमें पता नहीं लगेगा कि आपको किस स्टेप पे प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जो बाकी क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के वो मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।